गांधी जयंती को लेकर बुधवार को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं चंडीगढ़ में रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू पहुंचे, जो सेक्टर 16 स्थित गांधी भवन में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज सभी मंत्रियों की पीएम मोदी द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। उनका कार्यक्रम यहां का तय था और इसके तहत आज उनके द्वारा संदेश दिया गया है कि स्वच्छता ही सेवा है और पूरी लीडरशिप इसको लेकर कार्यक्रम कर रही है और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को आज न सिर्फ भारत बल्कि 150 ऐसे देश हैं जो महात्मा गांधी जी को आज याद कर रहे हैं और उनके नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि उन्होंने दिहाड़ा है अज तो जरूर विजिट करके उन्होंने चीज़ां है जिहड़ियां आप यूज़ कीतियां। उन्होंने चरखा जेल जिहड़ा चलाउंदे सी वो ऊना जेल दे विच ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। 100 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। 100 ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ 37 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ 37 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ। 37 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ, ਪੋਸਟਲ ਟਿਕਟ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 100 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। मैं हिंदी में कहना चाहूँगा, आज बापू महात्मा गांधी जी को जिनसे प्यार से बापू कहते हैं, तो आज मैं अभी आपके साथ यहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब और सारे हमारे लीडर्स, हम अभी ऊपर म्यूजियम देख रहे थे। देखो, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आप हैरान होंगे भी, ऊपर जब मैंने देखा है बापू के नाम पे 100 देश, उससे भी ज्यादा 100 देशों का तो रिकॉर्ड है ऊपर। 100 देश ऐसे हैं, 100 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बापू के नाम पे कोई स्टैचू लगा हुआ है, कोई उनकी मूर्ति लगी है, कोई उनके लिए बड़ी और चीज बनी हुई है। 100 देश, और ऊपर उनके मान सम्मान में 37 कंट्रीज हैं जिनके पोस्टल स्टैंप्स, जो डाक टिकट है, वो जारी की हुई है, एक एक टिकट ऊपर लगी हुई है। और आप जान के, ये सबको पता ही है कारण क्या था। उस टाइम गांधी, हमने चरखा के सामने हमने सबने तस्वीरें खिंचाई, क्योंकि उस टाइम क्या था भी, हमारी फसल होती थी, पैदावार हमारे होती थी, कॉटन, कपास, और उसे ले जाके कहीं मैनचेस्टर में और जगह जाके उसे बना के पैसे कमाए जाते थे बड़े से बड़े। तो बापू ने जब ये चरखा रखा भी, क्यों? तो उसके बाद ये एक आज़ादी के लिए जो बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई, उसमें एक चरखा ही बहुत बड़ा जो एक चिन्ह बना, जिसके वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, उसमें एक बड़ा रोल चरखे का है। चरखे के बाद आपको याद होगा एक, जिसे नमक, नून दा एजुकेशन जरा कहते, वो सारा नमक जो है वो भी यहाँ से विदेशों में लेके जाते थे। वो 1930 में तकरीबन एक बात शुरू हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, जो गांधी जी के नाम पे। और गांधी जी इतने सेंसिटिव थे, जब ये कपड़े की मूवमेंट चल रही थी कपास की, चरखे से, तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि जब हम लोगों को मिलते थे तो भी लोगों के तो देश में तन पे कपड़ा नहीं, तो उन्होंने अपने कपड़े भी, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, अपनी धोती भी, जो अपने वस्त्र थे, उनको भी उन्होंने अपने आप को, जैसे गरीब को देखते हैं उसके पास वस्त्र नहीं है, वो तकलीफ मुझे भी पता लगे, अपनी धोती जो डालते थे वो आधी कर दी थी। और ये नहीं किसी को, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कोई मीटिंग है उसमें भी वो फिर वही तकलीफ झेलने के लिए और मैसेज देने के लिए, दिखाने के लिए, आज वही चीज़
उसी चीज को लेके हमारे स्वच्छता ही सेवा, ये नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बापू का असली, जो बापू कहने को तो बहुत बापू का नाम लेते हैं, लेकिन बापू के दिखाए हुए नक्शे कदमों पे कौन चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, जिन्होंने लगातार लाल किले से बात की और आज 10 साल हो गए हैं उस स्वच्छता अभियान को, और आज उन्होंने नारा दिया है स्वच्छता ही सेवा। क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था ईश्वर के पास जाने के और बहुत तरीके हैं, लेकिन एक सफाई अगर हम इससे लोगों को बीमारियों से दूर करते हैं और चीजें करते हैं, वो भी एक ईश्वर के पास आपको लेके जाता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे जोर देना चाहिए। और मकसद क्या है, ये सारी चीजें करना जो आप मीडिया में कवर करोगे, मीडिया में बड़ी बड़ी फोटोज आएंगी, आप दिखाओगे, इससे मैसेज क्या, यही है प्रधानमंत्री जी का। आज हर चीफ मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर कांग्रेस, अब पार्टी की तो बात छोड़िए, वो तो गांधी जी को शायद भूल भाल चुके हैं, पर बीजेपी आज हर जगह एक एक वर्कर, जैसे 50 जगह आज चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से लेके सारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे कार्यकर्ता एक एक जगह सफाई मुहिम में और अलग अलग प्रोग्रामों में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। और ये बीजेपी ने खास तौर पे आज प्रोग्राम, इसके बाद हम, क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम 4 बजे जो सब बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता, लीडर, हम कहीं ना कोई चीज छोटी, ये नहीं कोई बहुत महंगी चीजें, खादी की चीजें खरीदेंगे और उसको अपने घर में एक उसको पहचान देने के लिए ये आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खास तौर पे उनसे जुड़े हुए काम जो हैं, सफाई और खादी, दोनों चीजें आज सारे देश में, क्योंकि अगर खादी डालेंगे और खादी खरीदेंगे तो खादी वही बढ़ेगी तभी। बाकी बड़े बड़े ब्रांड तो मॉल्स में और सब जगह हम खरीदते ही हैं। इस दिन, आज के दिन गांधी जी के नाम पे हमें खादी की चीजें, खादी के वस्त्र, खादी की चीजें खरीदनी चाहिए, जिससे हमारा खादी का बिजनेस, कारोबार भी बढ़े और खादी का एक मैसेज है लोगों के अंदर, नई जनरेशन के अंदर जाए। सर राहुल गांधी ने कल गोहाना में बोला है, ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਖਾਦੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 33% ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੀਗਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਸਖਤ, ਪਰ ਜੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। कल गोहाना में राहुल गांधी ने बोला है, बिट्टू जी, ਇੱਕ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਂ। ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, कंगना रनौत ने स्टेटस पाया जी, उसके ਵਿੱਚ साफ तौर पर लिखा हुआ है, देश के पिता नहीं, देश कंगना के राउत तो ने बोला लाल है। होते हैं, धन्य है भारत धन्य है भारत की माँ, ये लाल। तो उन्होंने सीधा ये ट्वीट कहता किया। कि राष्ट्र के पिता नहीं हैगे, लाल हैगे। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂਗਾ, ट्वीट किया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ सर हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक मिनट सर, गल पूरी होने दो, एक मिनट मैडम, गल पूरी होने दो सर, कुछ कह ਨਹੀਂ, रहे हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। सर राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में रैलियों के दौरान कि देश का पैसा जो है लूट कर अडानी और अंबानी को दिया गया है और हरियाणा खास तौर से बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया है। आपका इस पर क्या कहना है? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी को समझ बहुत देर बाद आती है। सामने सामने सामने। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਨੂੰ
जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है। उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज्यादा जमीनें किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना, अगर एक इसमें 1% भी कोई फर्क हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें जो किसानों की लेके, आप गड़गांव चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्री जगह करनाल चले जाओ, पानी, किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। अब बहुत केस भी चल रहे हैं जिसमें आप जानते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना, पर सबसे ज्यादा अगर केस प्रॉपर्टीज किसानों की लेके किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और वो दी किसने? अरे भाई राहुल जी, अपने, अब मैं क्या कहूँ, अपने जवाई राजा से ही पूछ लो भी कितनी जमीन हुड्डा साहब ने हरियाणा में उनको दी है, उसका ही हिसाब ले लें, अडानी अबानी का हिसाब बाद में ले, वो भी उनके नंबर में ही आते हैं जो उनके साथ में रहते हैं। जमाई एक ही है, उनसे ही पूछ लें भी वो अडानी और अबानी से कम है। उसने ये भी बोला कि रक्षा बजट कम कर दिया। जो बयान दिया था, आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर आप? ये ऊपर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के ही बयान दिया जाता है, और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटेगी। पर जयराम रमेश कहते हैं, एक लास्ट वाला, जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटका में हमें तंग किया जा रहा है, ईडी से, सीबीआई से, हम बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमारी सरकार। जयराम रमेश एक ही जगह मिली है आपको, मेरे ते मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने ये बात कही भी, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी, मैं इस विवाद में जब उन्होंने सिखों की बात की, उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया, जब पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुरुद्वारे नहीं जाने दी। यहाँ कितने लोग पगड़ी वाले मीडिया में भी खड़े हैं, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर लें, मेरे को पूछ लें भी हाँ नहीं जी नहीं, हमें यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं इनकी बात मान लूंगा जो राहुल गांधी कह रहे। एक भी जो पगड़ीधारी सिख यहाँ पे खड़ा है, कोई कह दे मुझे भी हमें गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, तो यार उस पे आप मेरे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आप क्या समझोगे? इससे मतलब ये इंसाफ की आप इनसे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यार सज्जन कुमार टाइटलर, जिन्होंने सिखों को गली शहर शहर उनको जलाया, उनको मतलब तंदूरों में डाला, ये लोग वो हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के भी सारे कांग्रेस के लीडर, और भी राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में, और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000 20,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जलेबी ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਖਿਲਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇं जो हमारे बहुत बड़े जो कीर्तनी जत्था वडाला साहब, उनको जो अमेरिका में, मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लिखूंगा अपनी सरकार की तरफ से भी, वहाँ ये कभी भी किसी सिख के साथ ये होना नहीं चाहिए। पर जब वो अमेरिका में ये हुआ और सारे मीडिया पे आया, वडाला जो उनका सारे दो साथी थे कीर्तन करने जा रहे थे, उनको पगड़ी उतारने के लिए अमेरिका में बोला गया, उस पे कौन पंजाब का कांग्रेस का लीडर और कौन
नेशनल कांग्रेस का लीडर उस पे बोला है। ये आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद ही अमेरिका में ये प्रॉब्लम सिखों के साथ आ गई, तो इसको क्या समझे हम? ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। बिट्टू जी आखिरी सवाल यूएस का है।